ये और मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है, ऐसा आपको लगा कि लोग डाउट करते हैं या अंडर एस्टिमेट करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो आपको अपनी पर्सनालिटी को उस तरह से शो भी करना पड़ता है कि हाउ केपेबल आर यू टू मैनेज इट और नॉट। Females are better listeners. इट्स नॉट अबाउट जेंडर, आई थिंक देयर कुड It बी varies from person. पर्सन टू पर्सनालिटी के हिसाब से वेरी करता है। आपस में हजरात बैठे हैं एंड समबडी इज हैविंग अ बैड डे, तो यूजुअली दूसरे हजरात जो होते हैं, यार क्या है और कब और चलो आगे बढ़ो करो। खवातीन कभी कभी मिस कर जाती हैं। But out of 10, 9 people are like, we don't like to work with female bosses because they are extremely micromanaging. What do you think? आई फील women are more tuned to take up Okay. in comparison to the male bosses. Tell me about the red flags in a bad boss. I would say emotional intelligence. कुछ 2-3 मेजर चीजें आपको लगता है कि यार ये जनरली एम्प्लॉइज आर मेकिंग दिस मिस्टेक? अस्सलाम वालेकुम समीन साहिबा, कैसी आप? वालेकुम सलाम, हाँ, वेरी नाइस टू हैव यू। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। Very nice to have you as well. And I know there are very less female leaders that I get a chance to interview with. तो मुझे बड़ा अच्छा मौका मिल गया है। मैं बहुत सारे स्पाइसी क्वेश्चंस करने वाली हूँ आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, आई एम अप फॉर इट। ज़बरदस्त। जो लोग आपको पहली दफ़ा देख रहे हैं, छोटा सा इंट्रो उनके लिए हो जाए। What was your first internship like? पहली नौकरी, and how did you end up being here? So if I go back and start looking at where my internship was, I started off with a very small internship at Philips. वहाँ से मूव किया, और ये सारा MBA के टाइम का काम होता है कि आप इंटर्नशिप्स करते हैं। एंड देन आई एंडेड अप विद माय फर्स्ट जॉब एट BASF. So BASF is a multinational company where that was my training ground, I would say. They gave me exposure into multiple departments, not only sales, हालांकि मेरा core marketing था, but they taught me about how to manage the organization. So from each department, I was able to upskill myself, not only from marketing, but in perspective of running the business and how the entire value chain of an organization works. So I stayed with them and kept learning in that journey for almost 9.5, 10 years. फिर वहाँ से कुछ हुआ कि यार अब कुछ डिफरेंट करना चाहिए, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी B2B। केमिकल इंडस्ट्री डिफरेंट थी। वहाँ से जब मूव किया तो फिर GSK happened for me. And GSK was somewhere, it was a very different ball game altogether, coming into medicines, learning the value chain of medicines. केमिकल इंडस्ट्री में बात करते थे, इतने टन बिकना है, यहाँ पर ग्राम्स एंड मिलीग्राम्स एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ स्टार्टेड हैपनिंग। सो अगेन लर्निंग दोबारा स्टार्ट हुई। तो आपकी एजिलिटी टू लर्न जो है वो चैलेंज होती रही कि अब नई चीज़ सीखते हैं। चलो हम वो सीखना शुरू किया, एंड देखते देखते सीखते सीखते उनके साथ इन डिफरेंट रोल्स 10 साल फिर गुजर गए। फिर आई डिसाइडेड अराउंड कोविड टाइम्स टू स्विच टू एबट, एंड एज डायरेक्टर मार्केटिंग एबट का पूरा फार्मा का बिजनेस जो था वो मैं मैनेज कर रही थी। Okay. Abbott again for 2 years, and at that point in time I took a career break, and I had to support my family. My mother-in-law was not well, so I decided to prioritize the priority that I had, and took a career break for 6-7 months, and then restarted with Hudson Pharma as vice president commercial operations. And at this moment the entire organization, जितने commercial functions हैं उनको फिर मैं lead कर रही हूँ। So that was the journey, although many organizations did not cross my way, but I really value these organizations who have built my exposure globally, internationally, and across the different departments to be able to lead an organization in a role where we can be able to also groom talent and deliver on our objectives. Mm. Okay. You mentioned career break in between. That is something a lot of people are unable to, या तो ब्रेक के बाद कंटिन्यू करना मुश्किल होता है या उसके बारे में बात करना मुश्किल होता है। एंड इवन इफ दे आर कंटिन्यूइंग, दे नेवर मेंशन दिस। समटाइम्स वो सीवी में से छुपा भी देते हैं, बिल्कुल। राइट? तो बहुत सारे उसमें कंसर्न्स हैं। व्हाट आर योर थॉट प्रोसेस ऑल्सो? where does this confidence come from? I mean, you are like very confident about it. मैंने career break लिया, these are my priorities. Did you face any challenge? मैंने 3-4 सवाल मिक्स कर दिए हैं, बट आप आराम से हर बात का जवाब देगा। Did you face any challenge when you came back after the career break? क्या कोई डिस्क्रिमिनेशन लगी आपको अपने साथ? B, कभी सोचा कि मैं छुपा देती हूँ, बताती नहीं हूँ कि मैंने करियर ब्रेक लिया है? नहीं, देखिए बात ये है कि जब आप 20-22 साल काम कर चुके हो तो उसके बाद डर तो बहुत लगता है कि यार अगर स्टेप बैक करेंगे, फास्ट पेस है इंडस्ट्री का भी, लाइफ का भी, पता नहीं पीछे ना रह जाए। और व्हेन आई टुक दिस ब्रेक, मुझे नहीं पता था कि क्लियर डायरेक्शन कितने दिन
तक मुझे ये ब्रेक कंटिन्यू करना पड़े. इट कुड हैव बीन लॉन्गर एज वेल. बट देन ऑल्सो एक चीज़ ज़हन में थी कि आप जब एक्सेल करने की बात कर रहे हैं, तो आपको हर चीज़ में एक्सेल करने की ज़रूरत होती है और प्रायोरिटीज़ आपको जगल अप करनी पड़ती है. इफ़ यू नॉट एबल टू सेट दोज़ बाउंड्रीज़ फॉर यू, और एक वर्किंग वुमन के लिए इट्स नॉट पॉसिबल. आप किसी भी सूरत कोशिश कर लें कि हम प्रायोरिटाइज़ कर दें, हम ये सेगमेंट कर लेंगे, हम ये सेगमेंट कर लेंगे और हम ये सेगमेंट कर, ऐसा नहीं होता. सारी चीज़ें एक साथ चलती हैं. आपको ओवरलैप में काम करना होता है, अपनी चॉइसेस आपको खुद लेनी होती है. नोबडी इज़ आस्किंग यू कि आप काम करें, and nobody is saying that आप ना करें, but you choose for your well-being what really impacts you. And when you have that conversation with yourself that आपकी इस वक्त well-being के लिए क्या important है और आपके लिए कौन लोग important है, और आप अपनी ज़ात के साथ भी इंसाफ करें और जो काम आप कर रहे हैं प्रोफेशनली उसके साथ भी इंसाफ करें. अगर आपको ये लगता है कि आप इंसाफ नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर बेहतर है कि किसी एक चीज़ के साथ पूरा इंसाफ कर लीजिए एंड देन मूव ऑन. यहाँ तक आई थिंक आई वाज वेरी क्लियर कि मुझे क्या चीज़ लेकर चलनी है. एंड फॉर मी, ऑल्दो ये वर्किंग वुमेन के लिए होता नहीं है, कहा नहीं जाता है कि फैमिली प्रायोरिटी बनती है, काम यूजुअली समझते हैं लोग कि प्रायोरिटी बनती है, बट इन एसेंस ऐसा नहीं होता. दोनों चीज़ें प्रायोरिटी होती हैं. अपना अपना पैशन भी प्रायोरिटी होता है और कुछ जिम्मेदारियां भी हैं जो प्रायोरिटी होती है. और वालदैन की जिम्मेदारियां बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं. अब वो चाहे वालदैन आपके अपने हों या आपके स्पाउस के हों, तो इट डिपेंड्स ऑन द रिलेशनशिप्स. सो I think I was very blessed to get that support and confidence from my family as well, that fine, you do what you want to do. So I was able to make my choice. फिर उसके बाद I thought कि वापस जब आना है करियर के अंदर, तो उसमें I did not settle in for something less. I made choices again. ऐसा नहीं है कि आप बस अब कुछ भी मिल जाए और चल पड़े. कुछ भी नहीं आना है. डोंट सेटल फॉर समथिंग. ये हमारी खवातीन में जनरली होता है. कंप्रोमाइज कर लेते हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं. हम हर चीज़ में अपनी वर्थ नेगोशिएट नहीं करते. अपनी वर्थ नेगोशिएट ज़रूर करें, और उस वर्थ की नेगोशिएशन के साथ आपके वैल्यू सेट के साथ क्या चीज़ मैच कर रही है, पिक दैट. सो आई हैड in fact I had 2-3 options at that point in time when I was coming back in my career. People approached me and said to me कि भाई हमें ज्वाइन करें. कुछ बहुत बड़े प्लेयर्स थे, मार्केट के लीडर्स थे, एंड हडसन भी हमारे पास थी जो ऑप्शन मेरे पास आया. सो मार्केट लीडर को भी मैंने वहां पर छोड़ दिया, और हडसन आने का मुझे लगा कि यार ये जिस तरह का इनका माइंडसेट है इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड क्वालिटी, आई एम एबल टू एसोसिएट विद देम. बिकॉज देखिए, बात यह है कि एट द एंड ऑफ द डे अगर हम इंडस्ट्री में देखें तो एक मेडिसिन के लिए एफिकेसी क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है. और मल्टीनेशनल में काम करते करते कुछ क्वालिटी ब्लड के अंदर भी चली जाती है ना आपके, तो वो नॉन नेगोशिएबल हो जाता है. और अगर वो नॉन नेगोशिएबल आपकी अपनी उसके अंदर है, पर्सनालिटी के अंदर है, तो फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन जिसके साथ आप एसोसिएट कर रहे हैं उसके साथ भी वही वैल्यू होगी तो काम बस चलेगा, वरना नहीं होगा. वैल्यूज से अगर मुझसे ये कह दे कोई कि जी ये इन्फीरियर क्वालिटी है, पास कर दीजिए ये बैच, तो आखिर में ये सोचना भी ज़रूरी है कि वो दवा मैं भी इस्तेमाल कर सकती हूँ, मेरी फैमिली भी इस्तेमाल कर सकती है, और दैट इज़ नॉट नेगोशिएबल फॉर मी, एंड दैट वाज नॉट नेगोशिएबल फॉर हडसन. फिर इनोवेटिव माइंडसेट की अगर हम बात करें, कुछ डिफरेंट करना है, तब सब वही चीज़ें करते चले आ रहे हैं, तो फिर क्या फ़ायदा है, कुछ मुख्तलिफ करें. और हडसन की जो ओवरऑल विजन था, जब मैं इनके सीईओ से मिली तो इनोवेटिव मेडिसिन्स के ऊपर बात हमारी हुई, और वहाँ पर मुझे क्लिक किया कि नाउ दिस इज समथिंग व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट, जो आप एक मल्टीनेशनल कल्चर में होते हुए बहुत मुश्किल से कर सकते हैं. what is the different thing they're doing? So the different thing that they're doing is that medicine is not just the R&D molecule की हम बात करें, सब वही नहीं होती है, बल्कि ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स जो हैं वो भी डिफर करते हैं, इनोवेशन डिफर उनसे भी करती है. सो बहुत सारी चीज़ों के अंदर जब आप फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज लोगों को लेकर आए, आप उनके लिए जो क्वालिटी हेल्थ केयर मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं उनके ऊपर रिस्क भी लें, और वो यहाँ पर अवेलेबल कराएं फॉर अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ एट एन अफोर्डेबल प्राइस. सो मुझे वो चीज़ क्लिक करती थी, Serving the country? serving the country. और यार it's about time that we localize stuff. Oh yes, oh yes. So वो कैसे होगा जब तक टैलेंट खुद नहीं, वो भागता रहेगा एमएनसी के पीछे भागता रहे, लेकिन जब तक आप बोल्ड होकर स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जाकर एसोसिएट नहीं होंगे और जो कुछ आपने अक्वायर किया अपनी जर्नी के अंदर वो पास ऑन नहीं करेंगे, हाउ आर यू गोइंग टू
bring the industry at a level where people can be confident to use the product. If I go and buy off the shelf and I ask for some brand, if I'm confident, then only I'm going to buy. Then only I'm going to consume, and especially for treating a disease, जहाँ पर आपका टॉलरेंस लेवल बहुत कम हो जाता है. कोई टिश्यू पेपर तो है नहीं कि आपने नाक साफ किया और फेंक दिया. So ऐसे तो नहीं होगा. So if you're not convinced that your family can benefit from it, हाँ, then what's the fun? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्सो आई विल गो बैक टू दैट पॉइंट करियर ब्रेक वाला. वैसे लोगों का माइंडसेट होता है, आपने ये फेस किया कि वो सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन है कि अगर करियर ब्रेक सीवी में मेंशन है तो आप प्रायोरिटी लिस्ट में थोड़े नीचे चले जाते हैं, ऐसा है? हाँ, होता है ऐसा. ज़्यादातर उस वक़्त होता है जब लंबा करियर ब्रेक हो जाए, तो लोग जो है वो उसको चैलेंज करते हैं ज़रूर कि आप इंडस्ट्री से कितना रेलेवेंट रहे. ठीक है. Because the pace of change in the environment is like immense. हाँ. Every day you are getting new technologies. If you do not stay relevant with the market, then you will lose your edge. So yes, it comes in. But alhamdulillah, I was not able to face that challenge. And during the break as well, I was connected to the industry. Network के साथ भी आप attached थे. So it was more relevant. And then somehow I think being upfront and honest worked for me. Yeah, this was it. And I admitted it. आप छुपाते हैं तो जरा dubious बन जाते हैं. हाँ, तो dubious क्यों बन कुछ गड़बड़ है. हाँ. हाँ, सही सही बात है, ये हुआ था. And it was, even if it is a break that you have taken for your mental peace, आपको कोई काम नहीं था, but mental wellness के लिए आपने लिया था, तो भी be bold about it and take it, because that break was needed for you to function as a better individual. So क्या फायदा broken employee लेने का. And it was not that मुझे ये opportunity मिली, but organization में there were a couple of more people who later on I interviewed, and I thought that they were on longer career breaks, but they were willing to restart their journey, so they restarted it. और उसमें आपको थोड़ा सा ओपन माइंडसेट भी होना चाहिए. इफ़ यू हैड अ लॉन्ग करियर ब्रेक, तो ऐसा नहीं होगा कि आप अपनी एज के साथ मैप करें अपनी पोजीशंस को. आपने जहाँ से छोड़ा था शायद एक रिवर्स गियर लगाकर कनेक्ट करना पड़े. तो उसके लिए ना इंडिविजुअल को ओपन होना चाहिए. थोड़ा सा डर और खौफ निकालें. अगर अपनी कैपेबिलिटी और एबिलिटी के ऊपर आपको कॉन्फिडेंस है, तो वो थोड़ा सा रिवर्स गियर डज नॉट मैटर. यू विल देन स्पीड अप, क्योंकि गड्ढे में से गाड़ी निकालने के लिए पीछे छोटा मोटा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं. छोटा मोटा कॉम्प्रोमाइज मोटा करना पड़ता है. निगोशिएट वेल, अगेन निगोशिएट वेरी वेल. women often tend to not negotiate. अच्छा, खवातीन बाहर जाएं और बाजार में जाएं तो खूब नेगोशिएशन कर लेती हैं. वहाँ भी आप के लिए नहीं करती. अपने लिए नहीं. आप अगर अपनी फैमिली यार लाइफ में अपनी वर्क है यार, लेकिन आसपास का माहौल भी ऐसा होता है ना कि वो आपको इन्फ्लुएंस कर देता है कि हाँ वर्थ कम है. बिल्कुल सही कह रही हैं. अगर हम अपनी फैमिली लाइफ में भी देखें तो सबसे पहले बच्चों को दे देंगे खाना, फिर बड़ों को देंगे खाना, फिर सब कुछ करेंगे, और आखिरी वक्त आता है जहाँ पर आप खुद आकर बैठेंगे. तो आई थिंक ये कौन ठीक करेगा? हम ही ठीक करेंगे. तो एक कल्चर डेवलप घर से अगर हम ये करें कि भाई जब सब इकट्ठा ही बैठेंगे तो वेट करें उस आखिरी बंदी के आने का भी, उसको भी बैठ जाने दें, और फिर अगर इकट्ठा शुरू करें तो फिर ज़्यादा अच्छा हो जाएगा. एंड दैट इज़ छोटी छोटी सी बातें होती हैं. इट्स नॉट अबाउट huge trainings that you have to go to and learn about things. In your daily life, you can practice a lot of things which teach you that how acceptable environment you are creating. जैसे देखिए, अगेन प्रायोरिटाइज जब आप कर रहे हैं तो आप अपनी लाइफ के अंदर हम कोशिश कर रहे होते हैं. खातून से एक्सपेक्टेड होता है कि आप जॉब करने जाएं तो इजाज़तें लेनी हो, ठीक है ना. वो इजाज़तों का मेरे ख्याल में अब टाइम चला गया है. ठीक, अगर वो इजाज़त के बजाय एक कॉन्वर्जेशन में कन्वर्ट हो जाए, ये मैं चाहती हूँ या मैं ये चाहता हूँ, और उसको प्रॉपर मेरिट के ऊपर इवैल्यूएट कर लें, तो आई थिंक लाइफ वुड बी ईजियर. दूसरा, आपके जो इंडिपेंडेंस का हम नारा तो बहुत तेज़ी से लगा लेता है, मगर इंडिपेंडेंट होने के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है और पापड़ भी बड़े बेलना पड़ता है. किन चीज़ों में आपने इंडल्ज होना है और किन में नहीं इंडल्ज होना, या आपकी भी चॉइस है. ज़रूरी नहीं है कि आप अगर वर्किंग वुमन हो तो आपका घर उल्टा ही पड़ा रहेगा, जो कि एक स्टीरियोटाइप बन गया है. ऐसा कहीं भी नहीं होता. इट्स अबाउट हाउ यू मैनेज वेल एंड हाउ यू डेलीगेट द स्टफ. ओके. सो डेलीगेशन आपको घर पे भी करनी पड़ेगी. थोड़ा ट्रस्ट आपको अपनी हेल्थ पे भी करना पड़ेगा, और कॉम्प्रोमाइज़ फिर उस हिसाब से आपका नहीं होता.
जो अगर आपने उसी किस्म का स्टाफ भी फिर आपको रखना पड़ेगा अपनी एस्पिरेशन के साथ मैच करके, वो करना होगा। डायरेक्शन थोड़ी चेंज हो रही है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अ लॉट ऑफ करियर ओरिएंटेड वुमेन फेस दिस चैलेंज, हाउ टू मेंटेन द बैलेंस। आपने कहा डेलीगेशन इज एब्सोल्युटली अ वेरी गुड point. How do you manage the balance? What are the things that you delegate, or maybe prioritize कि ये काम मैं करूँगी, ये काम मैं delegate करूँगी? How do you manage the balance thing? बिकॉज बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है उसके अंदर कि आपके रूटीन के जो स्टाफ है आपका, जो आपने मैनेज करना है, घर चलाने के लिए भी आपने करना है, अपनी जिम्मेदारियां भी आपने करनी है। अब हर काम के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने अपने कपड़े खुद ही जाकर एक एक प्रिंट चूज करना है और उनको फिर सिलवाना है और उनको स्क्रैच से करना है। गिव अप ऑन इट। इफ़ यू कैन मैनेज इट, शॉप ऑफ द रैक। इस वक्त नहीं है टाइम। फिर खाने की अगर हम बात करें तो उसके अंदर भी आपको सपोर्ट मिल सकती है। आपको थोड़ा सा मैनेज करना होगा इन द सेंस कि ऑर्गेनाइज करके आपने रख दिया एंड देन आपने उसको डेलीगेट कर दिया। सो आई गो बाय मेकिंग माई चेकलिस्ट फॉर द मंथ। ठीक है, कि मुझे ये काम निकलवाने हैं इस महीने में। सही है। कि कौन से काम हैं जो कि माई मेड कैन हैंडल इट, माई ड्राइवर कैन हैंडल इट, माई सपोर्ट जो मेरा नेटवर्क है उसमें से कौन हैंडल कर सकता है। यहाँ तक अगर है तो आई विल नॉट बॉदर गोइंग माई सेल्फ। सही है। द ग्रोसरीज लानी है, मैंने ट्रेन कर दिया एक बंदे को कि भाई 3 दफ़ा उसके साथ जाकर ये ब्रांड है, ये उठाना है, ये नहीं उठाना है। अब मेरी लिस्ट है, उस बंदे को भी पता है, उसने आकर सीधी मुझसे लिस्ट मांगनी है और मैं अपनी मंथली ग्रोसरीज खुद नहीं कर। वाओ, ठीक है। Okay. और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करती हूँ, Oh yes. बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। मतलब रिसेंटली वन ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स हु वाज विजिटिंग अस, और उन्होंने वो बहुत शॉपिंग पसंद करती हैं। जब भी बाहर से आते हैं तो वो सीधा मार्केट में घुसते हैं और वहीं रहते हैं। मतलब मुझसे ज़्यादा रिश्तेदारी उनकी दुकानदारों से हो जाती है। तो हम मजाक यही कर रहे थे कि कहने का मैं इतनी शॉपिंग नहीं करती। कहते नहीं बीबी, आप जो है ना ऑनलाइन की क्वीन है, तो आप ऑनलाइन शॉपिंग क्वीन है, आप वहीं से सब कुछ मंगवाती रहती हैं। हर थोड़ी देर बाद एक बेल बजती है और कोई आ जाता है, हर थोड़ी देर बाद एक बेल बजती है और कुछ आ जाता है। तो ठीक है, इफ यू इवन हैव टू पे अ लिटिल मोर, आई एम सेविंग अ लॉट ऑफ टाइम, Why your time? which gives me peace at work, which also gives me peace in my life. मैं वो टाइम, क्वालिटी टाइम किसी और के साथ स्पेंड कर सकती हूँ। I would rather enjoy that time with my family rather than किचन में खड़े होकर आप हांडियां भून रहे हैं। क्या ज़रूरत है? Hmm. Yeah, I agree with that. In fact, मैं अपनी अम्मी, my mother is a housewife, right? And I was teaching her कि ये बाजार की ऐप और क्रेव मार्ट की ऐप कैसे यूज करनी है। तो I was telling her कि आप खुद जाकर चीजें लेकर आती हैं। उन्हें बड़ा है कि मैं जाकर ही देख के करूंगी, अगर इसने गलत चीज भेज दी तो। मैंने कहा अम्मी नहीं, वो क्वालिटी की चीजें ही भेजते हैं। और बहुत कम कभी एक आध दफा कोई ऐसा प्रॉब्लम हो कि उन्होंने लेट्स से कि वो प्रोडक्ट नहीं था, तो उसमें भी उन्होंने मुझे कॉल किया बाकायदा कि यार आप देख लें, ये नहीं है, इसकी जगह ये वाला ब्रांड भेज दें। अदरवाइज कभी भी ऐसे कोई ब्लंडर होता ही नहीं है। इवन उसमें उसमें बनानास और आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, आपके आटा, एक-एक चीज़ है। मैं, मेरे को कहती है, मैं ये देखिए। नहीं, इंटरेस्टिंग ये होता है कि आप जब ऑफिस में होते हैं ना तो बहुत सारे लोग आपको हैरान भी होते हैं। और मुझसे कई लोगों ने ये सवाल भी पूछा, सेल्स फील्ड में गए हुए हैं, लोगों से मिल रहे हैं, सब कुछ है, और एक साहब आए, एक पर्सनल सवाल पूछ लूं मैडम? मैंने कहा जी पूछिए। आप बुरा तो नहीं मानेंगी? मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं मानेंगी। आप रोटी बना लेती हैं? मैंने कहा हाँ, बना लेती हूँ, बनवा भी लेती हूँ, दोनों काम कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि किस वक्त क्या करना है। हाँ, तो आई थिंक माई मदर इन दैट वे आई वॉज वेरी ब्लेस्ड कि उन्होंने एक काम ज़रूर किया बचपन में। उन्होंने डंडा रखा और सिखा दिया। सिखा दिया। और उनका कहना ये था कि बेटा आपको अगर आएगा नहीं तो करवाएंगी कैसे? हुँ। तो आना करवाने के लिए भी ज़रूरी है। ओह येस, वेरी इंपॉर्टेंट। आई मीन फॉर द कंटेंट क्रिएशन एज़ वेल, माय बॉस वाज़ लाइक एडिटिंग पहले खुद करो, हाथ लगाओ प्रीमियर प्रो को, सो दैट यू नो द बेसिक्स। एंड सेम गोज़ फॉर लेट्स से कि तुम्हें कोई कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन भी करनी है, कॉपी राइटिंग करनी है, तो फोटोग्राफी है, वीडियोग्राफी है, पहले खुद करोगी तो ही करवा सकते हो। नहीं, आप अगर काम में भी क्रिटिकल नहीं होंगे और खुद नहीं करेंगे तो आप क्रिटिक भी नहीं कर सकते। इफ समबडी कम्स अप इन माय ऑफिस एंड टेल्स मी कि समरीन ये नहीं हो पा रहा, आपने एक टास्क दिया है, तो अगला एक्सपेक्ट करेगा ना कि आई कुड बी एबल टू एक्सप्लेन एंड टेल कि होगा एग्जैक्टली कैसे। अगर अपने खुद को ही नहीं आता तो फिर कैसे होगा? तो यू नीड टू नो। एंड आई थिंक उसी वजह से जिस जमाने में हमने मार्केटिंग पढ़ी थी, 10 साल हो गए, गुजर गए, अगर हम अपने रिवर्स मेंटोरिंग में नहीं बिलीव करते तो फिर रेलेवेंट नहीं रह सकते, क्योंकि एवरीथिंग हैज इवॉल्व्ड सो मच। उस वक्त तो ई कॉमर्स का सिर्फ नाम सुना था, किताब में ही पढ़ा था। तो अब वो एक्चुअली डायनामिक्स में इतना आ गया है। यूज करना
और फिर ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसको डेवलप करना बहुत बहुत आगे चले गए हैं। एंड देन मूविंग ऑन टू एआई एंड और अब जहाँ हम जा रहे हैं वो तो ज़माना बदलता जा रहा है। Of course, even दवाइयाँ भी, I mean online, there's so many tablets and some medicines जो ऐसे नहीं मिल रही होती। तो I taught my mother कि ये देखिए ये apps हैं, इनको यूज़ करें and then you'll be able to order medicines online, right? So you're a female leader, right? लीडरशिप जब और अब जिस इंडस्ट्री में वो ज़्यादातर मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री ही है। डिड यू फेस चैलेंज एज ए फीमेल लीडर व्हाइल जॉइनिंग द लीडरशिप? कि आपको लगा कभी कि सॉर्ट ऑफ कोई डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर आया कि खातून हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो लीडरशिप पोजीशन अच्छे से हैंडल कर लें, ये और मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है तो नॉट श्योर कि वो कैसा करेंगी, ऐसा आपको लगा कि लोग डाउट करते हैं या अंडर एस्टिमेट करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो आपको अपनी पर्सनालिटी को उस तरह से शो भी करना पड़ता है कि हाउ केपेबल आर यू टू मैनेज इट और नॉट। I still remember there was one interview I appeared in for a job. The interviewer was sitting somewhere in Saudi Arabia and he was reviewing for a business unit head role in Pakistan और मल्टीनेशनल का था। तो वेरी इंटरेस्टिंगली क्योंकि मल्टीनेशनल में जनरली इन चीज़ों के ऊपर बहुत फोकस होता है कि आप डिस्क्रिमिनेट ना करें। हाँ। उनका पूरे इंटरव्यू में जो फोकस था वो यही था कि आप हजरात की सेल्स फोर्स की टीम को कैसे मैनेज कर पाएंगी, हाउ वुड दे बी लिसन टू यू, स्पेशली इन एनवायरनमेंट लाइक पाकिस्तान जहाँ पर बहुत मेल डोमिनेटेड है। हालांकि मुझे इंडिविजुअली कभी ये फील नहीं हुआ था बिकॉज आई हैव 3 ब्रदर्स यंगर टू मी, तो मैं तो हमेशा मेल डोमिनेटेड में ही रही और डोमिनेट भी करती रही। इंटरेस्टिंगली तो मुझे प्रॉब्लम नहीं थी। हाउएवर मुझे इस पूरे इंटरव्यू में फील हुआ कि उन्होंने पूरी कैपेबिलिटी को साइड में रख के आई थिंक दिस रिस्क he did not take। उसी टाइम के ऊपर जीएसके में मैं थी और डिफरेंट लीडरशिप जर्नी से गुजरते हुए असेसमेंट आया जहाँ पर बिजनेस यूनिट डायरेक्टर के रोल के लिए देवर इंटरनल कैंडिडेट्स को असेस किया। सो उसके अंदर आई वाज गिवन दिस रोल एंड माय जनरल मैनेजर कॉल्ड मी अप एंड ही सेड टू मी कि यार एक टास्क है कल जो हमें करनी है बिकॉज वी आर डूइंग दिस मैसिव रीऑर्गेनाइजेशन एंड if you want, you can say so that you don't want to participate in it because unfortunately हमें बहुत सारे लोग को let go करना पड़ेगा एंड कल से हम उनको इन्फॉर्म करना शुरू करेंगे इंडिविजुअली मीटिंग के साथ। अच्छा। सो इफ यू नॉट अप फॉर इट देन बता दो अभी। मैंने कहा लेकिन बात यह है कि गिव मी द लॉजिक एंड द रैशनल, वॉक मी थ्रू द होल सिनेरियो एंड आई वुड डू इट बिकॉज इफ यू say that मैं आपको कह दूं कि नहीं करूं और it's going to be overwhelming for me then I'm not ready for the role because role के लिए readiness तो उसी वक्त होगी ना जब ये आप tough काम्स भी कर सकें। So I did that. It was a very difficult exercise to do but we overcame that। फिर इसी तरह से जब आप सेल्स फोर्स टीम्स मैनेज करते हैं तो आपको you cannot be an intellectual every time, you have to like drop down on the ground as well and be able to connect with the people who are going out with for you, for your team to generate the sales। उनके लेवल पे आना। So उनके लेवल पे आना होगा ना आपको, तभी वो आपकी बात समझेंगे। तो बकौल बहुत सारे सेल्स फोर्स के कि ठंडा कमरों में बैठकर आप लोग मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी बना देता है तो ठंडे कमरे से निकल के भी दिखाना पड़ेगा और ठंडे कमरों में पसीने कैसे आते हैं ये भी बताना पड़ेगा। दोनों काम होने चाहिए ना। तो उसके लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये था कि आप पहले तो खुद फील्ड में जाएं तो आपकी एक्सेप्टेबिलिटी हो जाती है। अगर आप वुमेन कार्ड खेलेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। हाँ, कि मैं क्यों जाऊँ फील्ड में, मैं लड़की हूँ। उल्टा हो कैसा करते हैं ना, आप रिवर्स करते हैं, मैं भी फील्ड में खड़ी हुई हूँ चलो, तो वहां पर अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली हमारे आधे से ज्यादा लोगों को शर्मिंदगी होने लग जाती है कि यार ये आ गई तो हम क्यों खड़े हैं पर। तो वो आप पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट पे ले जाते हैं इंस्टेड ऑफ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। बोर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो वहां पे तो यू हैव टू बी अ लिटिल लाउड, ऐसा है? बिल्कुल है। आपको आवाज नहीं भी निकले तो निकालनी पड़ती है बिकॉज अनलेस यू स्पीक यू वोंट बी हर्ड। सो यू हैव टू। क्या ट्रेनिंग किया आपने अपनी? देखिए बात आपकी रैशनल होनी चाहिए उस बात के, उसमें बात में वजन होगा ना तो बात को सुना भी जाएगा। सही है। ये चीखने से कोई नहीं सुनेगा। और दूसरा कहीं कहीं पे अगर आपको लगे कि कोई ओवरवेल्म हो रहा है या थोड़ा बॉदर करा, मेक देम डेलिबरेटली टेक अ पॉज द मीटिंग फॉर अ मिनट और अ सेकंड, आप पॉज ले लीजिए उस मीटिंग के अंदर, तो लोगों के जो इमोशंस हैं वो जरा कंट्रोल में आ जाते, तो फिर लिसनिंग कैपेबिलिटी थोड़ी मजीद खुल जाती है। Females are better listeners? Not necessarily.
Not necessarily. They, if there are, it's not about gender. I think there could It be varies from person. person to personality के हिसाब से vary करता है. It can be. लेकिन आप अंडरस्टिमेट तो करते हो. अब आप कह रही हैं कि हैव टू बी वोकल टू बी हर्ड. हाँ, राइट. अंडरस्टिमेट तो कर जाता है बंदा, लेकिन फिर दिखाना पड़ता है कि भाई ऐसे नहीं चलता. और अगेन आपके लिए जो आपका काम है ना वो बोलता है. अगर आपने काम पक्का किया हुआ है एंड यू हैव योर नंबर्स एंड डेटा करेक्ट, सो यूजुअली आपको नहीं पीट सकता कोई. सो यू हैव टू प्रिपेयर मोर, यस, अ लिटिल मोर इन डेप्थ, यस, सुपरफिशियल नहीं होते. लेकिन एक चीज़ जो हम कभी कभी भूल जाते हैं वो ये होता है कि व्हेन आपस में हजरात बैठे हैं एंड समबडी इज हैविंग अ बैड डे, तो यूजुअली दूसरे हजरात जो होते हैं, यार क्या है, पक्का और चलो आगे बढ़ो करो. खवातीन कभी कभी मिस कर जाती हैं. हाँ. ऑल्सो वो जो सुट्टा ब्रेक्स पे जाके कैचअप कर लेते हैं वो हम नहीं करते. वो हम नहीं करते और हम जो है वो अपने साइलो के अंदर चले जाते हैं कि यार अच्छा फिर यही फेस कर लेंगी जो हो रहा है. वहाँ खड़े होने की ज़रूरत है. वहाँ अगर फीमेल लीडर्स एक दूसरे का थोड़ा सपोर्ट करें, साथ में, उसी तरह से जिस तरह अगर 7 के बोर्ड में एक फीमेल लीडर होगी तो करता. बट यू एंड अगेन देयर वुड यू वुड हैव टू आइडेंटिफाई योर go to people, and they go to people can be males as well. हाँ. They, you have to be able to connect with those. Okay, अगर आप 7 बोर्ड मेंबर्स में एक अकेली खातून है, एक बंदा तो ऐसा होगा जिसको बात समझ आ जाएगी. हाँ. तो वो नेटवर्क इम्पोर्टेंट है आपका. वो नेटवर्क करें. उस तरह आप लेकर Also, what about female bosses? I've been hearing. अभी आपकी टीम में से कोई बंदी कह रही थी, एक बंदी कह रही थी, नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ स्टीरियोटाइप है और सिर्फ लोगों का माइंडसेट है. What are your thoughts? I mean, मुझे लगता है 10 में से एक निकलेगी जो इस तरह होगी, जिसके लिए subordinates are like कि नहीं नहीं, our female boss is great. But out of 10, 9 people are like, we don't like to work with female bosses because they are extremely micromanaging, they are strict, they don't know how to forgive. More generally, male bosses are forgiving. What do you think? लेकिन बात यह है कि डाइवर्सिटी जो होती है इट इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी. आप डाइवर्सिटी के बगैर तो चल ही नहीं सकते. सबसे पहले तो ये बात तय हो गई है. सो सिमिलर जेंडर, आपको कल्चर भी अजीब सा मिलेगा उस जगह का, चाहे वो खवातीन इकट्ठी बैठी हुई हो, चाहे वो सिर्फ हजरात बैठे. हाँ 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 सर. तो वो अलग ही कहानी चली जाती है ना. तो डाइवर्स जो आपका है इट ब्रिंग्स इन डिफरेंट स्किल सेट. सो अगर हम खवातीन की बात करें तो उनके स्किल सेट के अंदर, जैसे मैंने शुरू में आपसे बात की, दैट आपको बहुत सारी चीज़ें प्रायोरिटाइज करनी होती है, मैनेज करनी होती है, जगल करनी होती हैं. तो यूजुअल खवातीन के ऊपर लोड जो होता है ना, मल्टीपल रोल्स एंड जॉब्स का होता है. अच्छा जी, अब मैंने बच्चों को भी उठाना है, मैंने ये भी करना है, मैंने खाना भी देने है, मैंने काम भी निपटाना है, डेडलाइन भी मीट करनी है, ये सब कुछ जब करना है तो नेचुरल टेंडेंसी ये आती है कि यार तुमसे नहीं हो पा रहा, मैं खुद कर लूँ. हाँ. एक ये फैक्टर आ जाता है. तो जल्दी करना है काम को अपने अंजाम तक पहुंचाने के लिए. दूसरी तरफ ये एक फैक्टर आता है कि ओवरऑल दे टेंड टू गेट मोर ऑर्गेनाइज्ड, कि ये पहले ऐसे होगा फिर ये ऐसे होगा, बिकॉज दे हैव टू मैनेज ऑन अ टाइट टाइमलाइन. सो सम पीपल मिसअंडरस्टैंड दैट फिनोमेना एज बीइंग ओवर कंट्रोलिंग और ओवर स्ट्रिक्ट हो रहे हैं. तो ऐसा आई पर्सनली फील कि ऐसा vibe आने लगती है, which is actually not the case. They are just trying to keep things more disciplined and more organized so that we are able to get to from point A to point B on time, and then the rest of the time they have to again go and do something else. तो उसकी वजह से वो थोड़ी expectations का मसला है. अगर आप again expectations अपने team members के साथ openly share करने लग जाएं तो वो ease out हो जाता है. You can have a really fun female bosses as well. आप एंजॉय करें साथ में. फिर एक कुछ ये भी बन जाता है कि डिस्टेंस रखना शुरू हो जाते हैं. जैसे जैसे आप लीडरशिप पोजीशन में आते हैं ना, इट्स अ वेरी लोनली प्लेस टू बी. जी. बहुत सारी चीज़ें आपको अपने दिल में ही रखनी होती हैं, बिकॉज दैट इज बाय द जॉब रोल दैट यू हैव टू फॉलो. तो वो लोनलीनेस लीडर्स की जो होती है उसको ट्रांसलेट कर लिया जाता है इनटू पर्सनालिटी टाइप्स, हाँ. which is really not the case. So as leaders you have to ensure that you control the dial of your personality, where you have to dial up your personality and where you have to dial down your personality and be compassionate. So those choices are the ones that I feel women are more tuned to take up Okay. in comparison to the male bosses. Male bosses जो है वो कभी कभी जब चिल भी हो जाते हैं तो फिर स्लैक भी हो जाता है जरा, हाँ. लीलर्स भी हो जाता है. हाँ. Again, I would again not stereotype gender to it. हाँ. It's about person to person. Okay. Talk to me about pharma industry.
आपने थोड़ा सा हडसन के बारे में मेंशन किया इनिशियली कि ये डिफरेंशिएशन दैट वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग एंड द विजन इज वेरी नाइस एंड वैल्यूज आर सिमिलर आप बता रही थी. What are the challenges in pharma industry that you face? लेकिन pharma industry, it's a huge industry. And if I go back where I started my journey from, so at that point in time, जो ratio था between local pharmaceutical players and international pharmaceutical players, वो आज reverse हो गया है. So it used to be 70% or 80% multinationals and very few local companies. Now it has exponentially changed. We see local firms more and more concentration. So 70-80% के करीब वहाँ जा चुका है और फ्लिप हो गया पूरा कुछ. सो उसके साथ साथ डायनामिक्स भी चेंज हो गए हैं. अब इंडस्ट्री के अंदर जो एक चीज़ जिससे मुझे बहुत इख्तिलाफ है वो है भेड़ चाल. ठीक है. एक चीज़ आई, सब अंधाधुंध उसके पीछे भागना शुरू. एक मॉलिक्यूल आता नहीं है, बस सबकी दौड़ लग जाती है, मैं पहले मैं पहले मैं पहले. मैं पहले से कुछ नहीं होगा. अंडरस्टैंडिंग द एंटायर थेरेपी and the entire concept and how it delivers benefit to the patient, that is more important than just being first. You need to understand what the patient journey is, what the doctor's journey is, and if you are not able to grasp the whole journey, yes, you can be the first, but you won't be the leader because you're not speaking the same language. I think that is a huge challenge. दूसरा चैलेंज जो हमारे पास है वो हमारा R&D स्पेस है. हमारे पास जो R&D है वो अभी भी बाहर की ही R&D is coming out and you're copy pasting it. हाँ. आपकी अपनी लोकल R&D इतनी स्ट्रांग नहीं. और अनफॉर्चुनेटली इट्स अ वेरी कॉस्ट हैवी सेगमेंट टू बी इन. अगर आप R&D में जाते हैं और अप्रोप्रिएटली करना चाहते हैं उसको, तो उसके लिए जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए है, जो स्किल सेट चाहिए, जो कैपेबिलिटी चाहिए, वो महंगा प्रोपोजिशन है. तो investing in that is something I think industry What about talent? being challenge. What about talents for R&D? लेकिन टैलेंट हमारे पास कम नहीं है. टैलेंट है हमारे पास, लेकिन उस टैलेंट को how you use them is also a skill set. उस टैलेंट को चूज करना is also a skill. और कुछ अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमारे बन ये गया है कि ना हर कोई शॉर्टकट के पीछे चला गया है. बस किसी भी तरह शॉर्टकट लगे और कंट्रीब्यूशन हो ना हो, बैंक में सही चीज़ ड्रॉप हो रही हो, तो उसके अंदर हम ज़्यादा भाग रहे हैं और वो कैसे भी आ जाए. हाँ. उसके लिए हम कुछ भी कर लेंगे. तो दैट इज ड्रिफ्टिंग द पॉपुलेशन टू इंक्रीज देयर डेप्थ ऑफ नॉलेज. जी. थोड़ा सब कुछ आ गया, डेप्थ नहीं आई. डेप्थ नहीं है. अगर मैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ढूंढने की कोशिश करती हूँ तो मुझे मुश्किल होती है. फिर दूसरी चीज़ विच इज़ ऑल्सो गुड कि हमारे एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट बढ़ता जा रहा है. लोग अपना काम भी करना चाहते हैं, लेकिन अगेन वो फ्रेगमेंटेड और छोटे स्केल के ऊपर हो रहा है. तो उसके अंदर बहुत सारी जो आपका अच्छा टैलेंट होता है उसको ये लगता है कि वो या तो बाहर चले जाएं, फ्लाइट है, या फिर जो है वो अपने चीज़ के अंदर आए. तो फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस इट बिकमिंग वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अट्रैक्ट टैलेंट एंड टू रिटेन दैम. एंड देन अब जनरेशन चेंज हो गई है. वो जो आपका जेनजीज हुआ करते थे वो फ़र्क है. जनरेशन एक्स के कंपैरिजन में नहीं खड़े हुए हैं. वो बूमर्स की जो एक साइंस थी वो अब जेनजी की साइंस नहीं. तो आप उस पॉपुलेशन को उस HR कैपेबिलिटी के साथ नहीं चला सकेंगे. जी. Their needs are different, their wants are different. Yeah. They will need more freedom to do what they feel is good for them. So you have to bring them on the same page before you make them act. अब वो yes sir कहकर और बस जैसे आपने कहा और नौकरी के साथ ही चलते रहेंगे, people are no longer that way. और I am seeing that जब Gen Alpha आएगी वर्किंग पॉपुलेशन में फर्क होगा. तो और बहुत मुख्तलिफ होगा. अब Gen Alpha की तो हमें अपनी बच्चा पार्टी जितनी है उनकी ज़बान ही नहीं समझ में आती कि भाई बोल क्या रहे हैं आप. तो वो जब हम अभी नहीं समझ पा रहे, तो आप जब उस लेवल के ऊपर आएंगे तो वो तो डेवलप हो गया, हमें भी डेवलप होना पड़ेगा ताकि हम वो जो गैप आ रहा है 2 जनरेशंस के बीच में उसको ब्रिज कर सकें. सो आई थिंक इफ यू आर नॉट अ फन बॉस राइट नाउ, you are missing out on things. Generation is not missing out on things. You would be the one who would be left alone and irrelevant. So it is for you to survive that you should be interacting with the younger people and you should have your reverse mentors picked out. Oh yes. Mentors तो हम अपने से सीनियर ढूंढते चले जाते हैं,
बट Yeah. रिवर्स मेंटोर है, उसके लिए भी लोग ढूंढे Yeah. और वो बच्चे ही मिलेंगे आपको. Oh yes, very good concept. इस पे तो लिंक्डइन पोस्ट बनानी चाहिए, मैं लिख लेती हूँ. अच्छा, along with that हम बात करते हैं हायरिंग की, ठीक है? बट बिफोर हायरिंग बीच में आपने पीछे कहीं मेंशन किया था कि एक टफ डिसीजन आपको लेना पड़ा था एंड यू हैड टू ले ऑफ पीपल. यू वर कंसिडरिंग कि आई मीन समबडी एल्स वाज कंसिडरिंग कि आप कर भी पाएंगी ये कम्युनिकेट या नहीं कर पाएंगी. हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस फॉर यू? हाउ did you make up your mind to communicate this, and what was your strategy to exactly do it flawlessly? आई थिंक सबसे पहले तो जब इस तरह की बड़ी एक्सरसाइज होती है ना, तो आपका क्राइटेरिया बहुत ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जिसके अंदर प्रेफरेंसेस नहीं इन्वॉल्व हो, पर्सनल लाइक्स डिसलाइक नहीं इन्वॉल्व हो, सो दैट द डिसीजन क्राइटेरिया इज वेरी ओपन. एंड उस वो आपका लोगों को पता होना चाहिए कि वो डिसीजन क्राइटेरिया है क्या. सो दैट सॉल्व्स अप द द हीट दैट कम्स इन द कॉन्वर्जेशन कि मैं क्यों और कोई और क्यों नहीं. दैट क्लोजेस द कॉन्वर्जेशन. एंड देन व्हेन यू आर हैविंग द कॉन्वर्जेशन, अगर आप टाइम निकाल कर 20 मिनट के लिए एक बंदे के साथ बैठ कर बात कर रहे हैं वर्सेस जस्ट सेंडिंग हिम अ लेटर, मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस. जी, जी. Listening to them, being empathetic and compassionate during that conversation, वो रिस्पेक्ट इंसान जाते जाते भी अपने साथ ले जा रहा है. सो अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको वो कॉन्वर्जेशन, जो मुश्किल कॉन्वर्जेशन एक बहुत रॉन्ग साइड चली जाती है, वो अच्छे से भी डील हो सकती है. सो इम्पॉर्टेंट ये है कि अंडरस्टैंड करें कि लोगों को, जब आप ये काम कर रहे हैं, अपनी खुशी तो किसी को भी नहीं होती ना इस काम के लिए. अब आप एक सिनारियो में हैं जहाँ पर एक आपने ऑर्गेनाइजेशनल और प्रोफेशनल डिसीजन लेना है. सो इट्स नॉट मी वर्सेस यू. पहले तो आप ये निकाल दीजिए अपने दिमाग से. दूसरे, उनके साथ जब आप बात करें, उनकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हुए आप उनसे बात करें. और अगेन, जेन्युइनली बी अवेलेबल फॉर देम फॉर फ्यूचर एज वेल. हाँ. इट्स नॉट कि रिलेशनशिप्स क्लोज हो गई. जिस आदमी ने मेरे साथ 10 साल काम किया है और अगर उसको मैं कह रही हूँ कि कल से तुम नहीं होंगे, इट्स अ वेरी टफ थिंग टू डू. एंड कल से तुम नहीं होगे के बाद क्या मैं तुमसे जिंदगी भर बात नहीं करूंगी? ऐसा नहीं है. आई एम देयर विद ऑल माई नेटवर्क दैट इज अवेलेबल टू हेल्प यू आउट इन द टाइम. इफ यू नीड एनी हेल्प, वी आर अवेलेबल. हम आपको सपोर्ट भी करेंगे एज एज फ्रेंड्स, एज कोवर्कर्स. वी आर देयर टफ डिसीजन के साथ. और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से बहुत से लोग हैं जिनके साथ मैं कनेक्टेड हूँ, जो मुझे कहीं मिलते हैं तो बहुत इज्जत से मिलते हैं. उनके शहर चले जाएं, उनको नहीं भी पता हो और उनको पता लग जाए कि इंडस्ट्री छोटी सी है, पता लग गया कि समरीना आई हुई है, फ़ोन कर लेंगे, मिलने के लिए बात करेंगे. तो आई रियली वैल्यू एंड दैट ऑनर, दैट इज्जत जो देते हैं ये ओवरवेलमिंग है, ओवरवेलमिंग. And at Hudson especially, what are the non-negotiables when it comes to hiring? Non-negotiable values ही कह लें आप. यार, नॉन नेगोशिएबल में आए, ये तो जनरली आपका ओवरऑल स्किल सेट तो है ही, होता ही है, वो हर जगह होता है. मगर एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू हायर पीपल हु आर विलिंग टू गिव देयर 100%. देखिए, फार्मा ने बहुत तरक्की कर ली मगर मोटिवेशन के टीके नहीं ईजाद हुए. ठीक है, वो वैक्सीन नहीं बनी है डिमोटिवेशन प्रिवेंट करने के लिए. तो उसके लिए एक इनर एटीट्यूड इनहेरेंट भी होना जरूरी है. वो जब तक नहीं होगा, द पैशन टू डू समथिंग इन योर करियर, तब तक मजा नहीं आएगा करने में. दूसरा, ऑथेंटिसिटी हो इंसान के अंदर. Okay. और बहुत इजीली पता चल जाता है कौन ऑथेंटिक है और कौन फेक है. जी. इतने सालों के अंदर तो ये सीख लिया है. हाँ. तो ऑथेंटिक पीपल आई प्रेफर मोर. उसके ऊपर मैं नहीं नेगोशिएट करती. दूसरा, समवन हु रियली वांट्स टू, who has that drive, that passion to do something different and brave. I would like to hire courageous people in the team. Courageous. Okay. Somebody who can also challenge me. Because course correction के लिए आपको कभी-कभी पावर जो होती है ना, वो आपके दिमाग में आ जाती है. तो some people should be around you who can course correct, which is very very rare for people to. One of my guests said थोड़ी सी पावर मिलती नहीं है कि फिरौन बन जाते हैं सारे के. वो गर्दन में सरिया आता है. हाँ. तो लेकिन फिर वो सरिया आपको दूसरे की सुनने भी नहीं देता. तो अक्सर लीडर्स ये कहते भी हैं कि हमें करेजियस लोग चाहिए अपनी टीम में, बट व्हेन दे आर चैलेंज्ड दे आर अनकंफर्टेबल. समटाइम्स दे डोंट इवन लिसन. उसके देखिए यार, आपको जो लीडरशिप की पोजीशन है ना, इट्स नॉट एन इजी पोजीशन. ठीक है, यू हैव टू हैव अ बिग हार्ट. और अगर वो नहीं होगा तो दैट डिस्टिंग्विशेस
लीडर्स एंड मैनेजर्स आई वुड से। तो लीडर लीडर नहीं रहा ना अगर वो खुद ये चीज़ बिहेवियर्स नहीं डेमोन्स्ट्रेट करा। सिर्फ अगर लफाजी है तो वो लफाजी कितने दिन चलेगी? तो कोई मिला आपको करेजियस सबऑर्डिनेट जिसने आपको चैलेंज किया हो? बहुत हाँ। आगे पीछे नाए बाएं आके चैलेंज करके चले जाते हैं। और मेरा मेरा उनको कहना सिर्फ यही होता है कि प्लीज़ हमारे पास 2 ही तरीके हैं, या तो गेट कन्विंस्ड या कन्विंस मी। और आँसू और चीखना इनसे मैं कन्विंस नहीं होती। आई नीड मोर सॉलिड डेटा एंड फैक्ट्स, कन्विंस मी हो जाएंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो चैलेंज करते हैं। हाँ, और आप अनकंफर्टेबल नहीं होती? ये तो बेहतर सवाल होगा कि मेरे टीम मेंबर से पूछा जाए कि मैं होती हूँ कि नहीं होती हूँ। ओके। वो क्या गलतियाँ हैं जो कोई फर्स्ट टाइम लीडर कर रहा होता है? फर्स्ट टाइम लीडर जो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी गलती करता है वो ये होता है कि बस जो कुछ पीछे हुआ है ना वो सब गलत है, मैं बताऊंगा कि कैसे होगा। ये नहीं होता। और अक्सर ये गलती कर लेते हैं लीडर्स, जो मुझे पर्सनली अच्छा लगता है वो ओवर पावर करने लगता है हर प्रेफरेंस और चॉइस के अंदर, which is again not the case. When you are into a selling business, your audience and your target market defines what the product and the strategy would be. Yeah. It might not be to your liking. And when you start imposing your liking, it starts getting messy, both in terms of business and in terms of managing people. So अगर आपको पसंद है पिंक कलर, मगर आपकी मार्केट रिएक्ट करती है उस ब्लू पैकेजिंग के साथ, तो आप पिंक नहीं कर सकते उसको, because it's only going to ruin your brand. हाँ। It's only going to ruin. So imposing what you wish versus what's working and what the market will respond to, I think leaders सबसे पहले वो गलती करते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ जो मेरे हिसाब से दूसरी गलती होती है वो ये होती है कि नो इट ऑल बन जाता है। मैं तो यहाँ आ गया हूँ ना, तो अब मैं तो सब कुछ जानता हूँ, बाकी सारे तो इडियट्स हैं। सो दैट इज ऑल्सो अ ह्यूज मिस्टेक दैट पीपल मेक। ओके, ओके। टेल मी अबाउट द रेड फ्लैग्स इन अ बैड बॉस। आई मीन वैसे तो वो बॉस ही हुआ, फिर लीडर नहीं कहलाएगा। हाँ, लेकिन रेड फ्लैग। आई वुड से इमोशनल इंटेलिजेंस। अगर इमोशन होना गलत बात नहीं है। अगर हम ह्यूमंस हैं तो इमोशन भी आएगा, हम रिएक्ट भी करेंगे, बट हाउ इज द मोस्ट वरीसम पार्ट। अगर रिएक्शन रैश है, इट्स अ रेड फ्लैग। रश आपको रिएक्ट करेंगे, जाहिर है करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। लोग कहते हैं ना रिएक्शन नहीं दो, ये पॉसिबल ही नहीं है। इफ यू आर ह्यूमन, हाँ रोबोट होंगे तो आप नहीं करेंगे रिएक्ट, लेकिन आप रिएक्ट करेंगे। हाउ you behave at that point in time, what language you choose, what words you choose, how you calm yourself down and express your viewpoint, that is most important. तो मुझे लगता है कि अगर इमोशन कंट्रोल नहीं है किसी के का अपने अपने पर, दूसरे पर तो बाद में होगा, तो वो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है लीडर के लिए। दूसरी चीज़ जो एक लीडर के लिए एक अगेन रेड फ्लैग है, जो मैंने आपको पहले कहा कि जस्ट माय वे, इसेंट्रिसिज्म जो है बस मेरे तरीके से ही होगा, वो भी मुझे एक रेड फ्लैग लगता है। माइक्रो मैनेजमेंट उसी से जुड़ी हुई है, बिकॉज वो इसेंट्रिसिज्म है ना, मैंने कहा था ऐसे होना है, अब मैं बताता हूँ कि कैसे होगा। तो वो जो एलिमेंट है, आई थिंक दैट मेक्स मी अनकंफर्टेबल वर्किंग विद एनी बॉस। ओके, ओके। व्हाट आर दी ऑर्गेनाइजेशंस डूइंग दीज डेज? एक तो आपने बताया कि अगर आप यू हैव टू हैव रिवर्स मेंटोर्स एज वेल, बहुत मजे की बात थी। तो आपको यंग जनरेशन से भी साथ साथ सीखना होगा। व्हाट आर दी अदर थिंग्स यू फील के इदारे गलत कर रहे हैं अभी? और गलत कर रहा है, इदारे इदारे गलत कर रहा है। एम्प्लॉयर के एंड से। देखिए हमें अपने साथ साथ जो लोगों को है वो डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। आई एम अ ह्यूज बिलीवर इन डेवलपिंग पीपल। हम समहाउ एज इंस्टीट्यूशंस ये समझते हैं कि हम बस हमने सारे एक्सपर्ट्स रख लिए, नाउ वी आर डन एंड डस्टेड, अब इनको कोई अपस्किल करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये मुझे बताएंगे क्योंकि ये तो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं। डायनामिक्स चेंज होते हैं, लोग चेंज होते हैं, हर किसी का हर चीज़ स्ट्रांग नहीं होती, तो आपको लोगों को फिर भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा इन इन कोचिंग देम, इन मेंटोरिंग देम, इन
developing them and training them. हम अपनी वर्कफोर्स को ट्रेन नहीं कर रहे, हम उनकी रेडीनेस फॉर फ्यूचर के लिए काम नहीं कर रहे, Okay. और वो नहीं करते हुए हो ये रहा है कि लोग अम, एक जगह फंस गए हैं. सो एक पर्सन अगर करियर में ग्रो करता है, एक पोजीशन से अगली पोजीशन पे जाता है, तो उस पोजीशन पर आने के लिए उसको जो चीजें चाहिए थी, क्या वो उसने अक्वायर की हैं? इफ नॉट, देन वी आर सेटिंग अप पीपल फॉर फेलियर, एंड दैट इज आई थिंक नॉट जस्टिफाइड फॉर उनके साथ जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं हम. आप किस तरह से उनको अपस्किल करें. एक दूसरी चीज ये कि हम रिस्क लेने से घबराते जाते हैं, Okay. रिस्क अवर्ट होते जा रहे हैं. हाँ. बिल्कुल रिस्क अवर्जन जो है ना, वो भी एक इंस्टीट्यूशंस के लिए प्रॉब्लम किस तरह का risk? देखिए, रिस्क अवर्जन के अंदर प्लेसिंग बेट ऑन द चॉइसेस ऑफ प्रोडक्ट्स दैट यू आर ब्रिंगिंग Okay. इन द पीपल दैट यू आर हायरिंग. Okay. कहीं पर रिस्क आपको लेना पड़ता है, कैलकुलेटेड लेना पड़ता है, मगर लेना पड़ता है. Also, like the initiatives that you नॉट take. बी प्ले सेफ. हाँ. Like the initiatives you take for employees. For example, अगर कोई कहता है कि मुझे female employees का रेशो बढ़ाना है, ठीक है, मुझे women empowerment पे काम करना है, and then you're not even prioritizing daycare, which is like the basic, because आप सिर्फ सिंगल फीमेल एम्प्लॉइज हायर करेंगे या उनकी शादी हो जाएगी तो फिर आप उनको भी फायर कर देंगे, या किस तरह आप फीमेल एम्प्लॉय रेशो बढ़ाएंगे. तो ऐसी सो मेनी एम्प्लॉयर्स डिस्कसिंग कि हमें फीमेल एम्प्लॉय रेशो बढ़ाना है वगैरह वगैरह, और एक छोटे से डे केयर तक पे इन्वेस्ट नहीं करते. तो आई मीन हाउ डू यू रिटेन देम? ये भी रिस्क वाली चीज है. रिस्क. अब हमें पता है कि अगर हम इंस्टीट्यूट्स में भी जाएं, हमारी जनरली, इस पर आउटलैश भी आपको आ सकता है, लेकिन जनरली स्टूडेंट्स डूइंग वेल आर फीमेल्स. ठीक है. सो बहुत सारी तो वो ऑलरेडी आपकी पॉपुलेशन में से कट जाती हैं, जी. शादियां होके घरों पे बैठ गई, काम करने की इजाजत नहीं मिली. आज भी ये है, हाँ. ये खत्म नहीं हुआ है हमारे मुल्क में. तो जब आप उनको लेकर जो जॉब मार्केट में आते हैं, तो आपके पास वैसे ही चंद बहुत स्मॉलर पॉपुलेशन रह जाती है जो हाँ. स्किल्ड वर्कफोर्स की थी आपके पास. हाँ. अब उनका अगर हम ख्याल नहीं रख पाएंगे, हाँ. हम उनमें इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, तो फिर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी नहीं आएगी. आपका टर्नओवर हाई होता चला जाएगा, आपकी कॉस्ट ऑफ हायरिंग बढ़ती चली जाएगी. आज आप एक फेस रखेंगे, फिर निकल गया, फिर दूसरा फेस आएगा, तो आपकी कंटिन्यूटी भी डिस्टर्ब होती है. ये कीप ऑन स्ट्रगलिंग विद मेंटेनिंग अ स्टेबल वर्क साइकिल, वो नहीं हो पाएगा. सो आपको अपने एम्प्लॉयज के अंदर जितना इन्वेस्ट करने की जरूरत है, वो लोग नहीं करते. पीपल सी दैट एज एन एक्सपेंस रादर देन इन्वेस्टमेंट. जी. वो उसका ROI गेज नहीं कर पा रहा है. जो शायद 5 रुपए की मशीन लगाकर जितना सब कुछ उसमें से आप निकाल रहे हैं, वो ROI का आप गेज कर रहे हैं, बट उस मशीन के चलाने वाले की एक्सपर्टीज को आप ROI के लिए नहीं मैनेज कर पा रहे हैं. सो आई थिंक हमारा कल्चरली we need to invest more in trainings and keep on developing people and keep them engaged. And an employee भी, अगर एक यंगर एम्प्लॉय आ रहा है, अब वो एम्प्लॉय वो नहीं रहा है जो बस यस बॉस मैंने आपसे जैसे कहा कि हाँ. करता रहे. हाँ, ठीक है. We will also evaluate what's in there for me. Especially young generation would value these initiatives. तो वो जो employee well-being, You have to be a modern employer, Yeah. to have that workforce stay with you. So let's talk about modern employer. What are the things? I mean, एक तो मुझे डे केयर का बड़ा लगता है कि यार ये बहुत सारे इदारे मिस कर रहे होते हैं, सिवाय मल्टीनेशनल्स के मैं कहीं नहीं देखती कि वो एक छोटा सा कमरा भी एलोकेट करें इस चीज़ के लिए. What are the other things that you see कि to be a modern employer or to attract young generation, what are the things that we should do to improve or to work upon employee well-being? अगेन बात हम स्टार्ट करें डाइवर्सिटी से. डाइवर्सिटी जब है आपके पास, तो आपको डिफरेंट लोगों की डिफरेंट नीड्स को कैटर करना है, और अगर एज एन एम्प्लॉयर आप उन नीड्स को मैनेज करवा सकते हैं, तो आप मॉडर्निटी की तरफ जा रहे हैं. सो और अगेन उसके अंदर जेंडर इज नॉट द डिफाइनिंग क्राइटेरिया. हम मैटर्निटी लीव तो दे देते हैं, पैटर्निटी लीव हार्डली है. ठीक है, वो बंदा भी बहुत सारी मुश्किलात में फंसेगा, उसको भी 4-5 दिन की लीव दे दो. God, oh yes. ठीक है ना, उसको भी 4 वैसे एग्जिस्ट करती है इदारों में. बहुत कम. हाँ. वी हैव इट एट हडसन, अच्छा. we have it at Hudson, but तो कोई अवेल करता है पैटर्निटी लीव? करते हैं लोग. and we encourage them to take it. Wow. बिकॉज सिंगल माइंडेड होकर उनके लिए भी जिंदगी का एक डिफरेंट एस्पेक्ट शुरू हो रहा है ना, उनको भी वो स्पेस चाहिए. दूसरा मॉडर्निटी, आई थिंक गिविंग रिमोट वर्किंग के ऑप्शंस, वर्क फ्रॉम होम या रिमोटली वर्क करने के लिए, आई थिंक उसको अगर हम अडाप्ट करें, और इट हेल्प्स इंडिविजुअल्स फुलफिल देयर थिंग्स दैट पॉप अप randomly, and it really provides them space and safely वो अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकें, बजाय चिपचिप के.
हाँ, इसके अंदर डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी होगा, मैनेजर के साथ आपको मैनेज करना बहुत ज़रूरी होगा। सो मॉडर्न एम्प्लॉयर के इनिशिएटिव्स के साथ आपकी वर्कफोर्स की मैच्योरिटी also matters a lot. If your workforce is not mature to deal with those situations, then it can lead to unorganized behavior. But if you are mature enough and you provide these facilities, usually उसका positive benefit आता है। इसी तरह से स्टडी सबैटिकल्स होती हैं, ठीक है। इसी तरह से मेंटल वेलबीइंग सबैटिकल्स होती हैं। उन चीज़ों के अंदर अगर आप जाएँ तो यू आर टॉकिंग अबाउट मॉडर्निटी। सो दीज़ आर द स्मॉल स्मॉल थिंग्स जिनके ऊपर आप एक्शंस लेकर अपनी वर्कफोर्स को एक मॉडर्न फील दे सकते हैं। आई थिंक यही चीज़ें होती हैं जो लोगों को लेकर जाएंगी टुवर्ड्स मॉडर्निटी। अब कुर्सी पर 9 to 5 बैठकर ही काम दफ्तर में ही नहीं होता। एंड ऑल्सो पीपल फील मोर प्रोडक्टिव। आई मीन लेट्स से ज़बरदस्ती 8-9 घंटे बैठे हुए हैं पर अनप्रोडक्टिव भी हैं, तो उससे बेहतर है कि अगर वो स्पेसिफिकली चाहे वो रिमोटली कर रहे हो, चाहे वो अपने बैलेंस आई मीन लेट्स से बच्चों को छोड़ना है, लेना है, ये कर लिया बीच में, फिर वापस आके काम कर लिया। दे विल बी इन्वेस्टिंग जितना भी टाइम वो ऑफिस में है, वो फुल ऑन फिर उस पे काम पे लगा रहे होंगे। वरना फिर अगर आप उसको ज़बरदस्ती स्ट्रेच करते हैं तो फिर वहाँ पे अनप्रोडक्टिव आवर्स भी आए। स्टडीज़ पढ़ी, आई थिंक फ्लेक्सिबिलिटी जितनी हम ऑफर करते हैं ना, उतना हमें प्रोडक्टिविटी ज़्यादा मिल जाती है। बट अगेन मैच्योरिटी ऑफ रिसोर्सेज इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि आप कल्चर में वो एक मैच्योरिटी ड्राइव करें। फ़ायदा ना उठाएं। उसमें आपको नज़र रखने की भी ज़रूरत होती है कि ऐसा नहीं हो कि हर जगह पे यूजर्स एंड अब्यूजर्स होता है। सो आइडेंटिफाई द अब्यूजर्स बट डोंट पेनलाइज द यूजर्स। तो दैट इज इम्पोर्टेंट। आप 2 लोग गलत कर रहे होंगे, हम 100 को पेनलाइज कर देंगे। हाँ, ये तो होता है, तो ये तो होता है। हाँ। उस 2 की वजह से ना बाकियों को गेहूं ना बनाएं कि उन घुन की वजह से सब पिस जाए। सो यू नीड टू स्ट्राइक दैट बैलेंस बिटवीन देम। और आगे जाते हुए आई ऑल्सो वेरी स्ट्रांगली फील कि अब जिस तरह से हमारी ओवरऑल पॉपुलेशन कोहॉर्ट की मैं बात करूं इज मूविंग टूवर्ड्स ओल्ड एज। एक बहुत बड़ा यूथ पल्स था हमारे पास जो कि अब प्रोग्रेस कर रहा है टूवर्ड्स देयर एल्डरली एजेस। तो एक टाइम वो आएगा जहाँ एम्प्लॉयर्स को ये भी सोचना होगा कि कुछ लीव्स उनके पास एल्डरली केयर की ही हो, बिकॉज वो हमारे पास मिसिंग होती हैं। हम बच्चों के लिए तो बहुत सारी चीज़ें करते हैं बट एल्डरली पेरेंट्स वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर माना जाए तो इट्स लाइक लुक डाउन अपॉन के यार अब अम्मा बीमार हो गए या पापा बीमार हो गए। हाँ। ये होगा और अगर हम ये नहीं मैनेज कर पाएंगे तो हम अच्छा टैलेंट लूज भी कर सकते हैं। तो हमें उसके लिए भी रेडीनेस अपनी डेवलप करनी चाहिए कि जब पॉपुलेशन ही आपकी ओल्ड एज की तरफ जाएगी तो नेचुरली आपको ये चैलेंजेस वर्कफोर्स पे भी आएंगे। ओके। द अदर क्वेश्चन इज व्हाट मिस्टेक्स यू सी एम्प्लॉइज आर डूइंग। अभी हम एम्प्लॉयर्स के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे थे, अब एम्प्लॉइज के पर्सपेक्टिव से आते हैं। कुछ 2-3 मेजर चीज़ें आपको लगता है कि यार ये जनरली एम्प्लॉइज आर मेकिंग दिस मिस्टेक। अपनी डेप्थ नहीं बढ़ा रहे, अपनी डेप्थ नहीं बढ़ा रहे, बस जितना दिया गया उतने ही को पूरा किया और आगे चले गए। और उसके बाद असेसमेंट ये है कि जी हम मुझे कभी एज के साथ एसोसिएट करना पसंद ही नहीं आया कि ग्रोथ जो है वो एज से रिलेटेड हो, इट्स कैपेबिलिटी रिलेटेड। सो इफ यू हैव द डेप्थ, a very young individual can manage very higher posts and I'm all for it. But अपनी डेप्थ बढ़ाने की ज़रूरत। So it is not about the number of years of experiences, it is about number of experiences in a year. And You can spend number of years doing the same thing and not learning anything. So that's not increasing your experience. That's not increasing your exposure. less experiences in a year. Unless you experience things differently, unless you deal with them differently, even at a younger age. And you can and you should be coming up in the ladder. बहुत सारे लोग हैं जो आज से 10 साल पहले शायद मुझसे सीनियर्स थे बट अब वो मुझे रिपोर्ट भी करते हैं। तो अगेन रिस्पेक्ट अपनी जगह पर उन सब की, मगर वो डेप्थ, वो ग्रूमिंग आपको अपने अंदर लानी है टू ग्रो। एंड दिमाग बना लें कि जिस काम में भी करेंगे ना हम एक्सेल करेंगे उस काम के अंदर। जैसे करो, हम एक्सेलेंस के पीछे नहीं जा रहे हैं, निपटाते हैं, बस निपटा दें, लपेट दें किसी तरह से काम को। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग आफ्टर। वेरी इंपॉर्टेंट। सो जाने और थोड़ी क्यूरियोसिटी रखें। लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी कम होती जा रही है वर्क प्लेस पे। ये कहा था बस कर दो, क्यों पूछा, क्यों करना था। मैं अपनी टीम के साथ परसों नरसों हम एक मीटिंग कर रहे थे और बात हो रही थी। मैंने कहा खराब सेल आती है तो सब जवाब देते हैं, मैम ये हुआ था, ये डॉक्टर बाहर चले गए थे, ये यूं हो गया था, ये क्लिनिक बंद था, फलाने सस्ता दे दिया। ये सारी मुझे बस रीजन आते हैं। कहीं अच्छी सेल हो गई, जरा मुझे इसका क्यों तो बताओ कि क्यों हो गई ये सेल।
ऐसा क्या हुआ कि तुम उस डॉक्टर को इस प्रोडक्ट पे कन्विंस कर सके? हम वो बात पकड़ते ही नहीं है, हालाँकि दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाई समबडी इज़ बाइंग फ्रॉम यू। दैट इनसाइट लोग इनसाइटफुल कन्वर्सेशंस नहीं करते अब। तो मैं आई थिंक वर्क प्लेस पे एम्प्लॉइज़ के साथ ये वाली चीज़ मिस करती हूँ। एंड ऑल्सो सो मेनी, जितने मैंने सीईओ से बात की ना, लाइक मेजॉरिटी सीईओज आर लाइक दिस, वी लैक डेप्थ, वी समवेयर अनइंटेंशनली प्रेफर मीडियोक्रिटी, ठीक है? और मीडियोकर किसी को बोल दो तो उसे बहुत बुरा लग जाता है, बट एक्चुअली आप एक्सीलेंस चेज़ ही नहीं करते, आप इम्प्रूव ही नहीं करना चाहते, आप डेप्थ ही नहीं बिल्ड करते। मेजॉरिटी ऑफ द वर्किंग क्लास जस्ट चेज़ मीडियोक्रिटी, बस हो जाए, निपट जाए, कर लिया, कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, हो जाएगा। एंड दिस हो जाएगा माइंडसेट के चक्कर में यू डोंट इवन थिंक यार नहीं अभी बैठ के मैं सीखूँ, इम्प्रूव करूँ, डेप्थ बिल्ड करूँ। तो हमारी दे जनरली जनरलाइज पाकिस्तानी एम्प्लॉइज एंड दे से कि दे आर मीडियोक्रिटी। एज़ एम्प्लॉइज़ वी डोंट नो आवर ब्लाइंड स्पॉट्स। या हम फीडबैक पसंद नहीं करते, ठीक है? और फीडबैक हम एक-दूसरे को देते हैं तो जेन्युइन नहीं होता, एक-दूसरे को पीपल प्लीज़िंग के लिए देते हैं। मक्खन। तो कितने लोगों में तो मैं करेज की जब बात कर रही हूँ ना, तो करेज इसलिए मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि अगर मेरे पास करेजियस लोग नहीं हैं, तो वो फीडबैक भी गलत दे रहे हैं, मशवरा भी गलत दे रहे हैं, आपको सिर्फ प्लीज़ कर रहे हैं। एंड आई डोंट लाइक प्लीज़र्स अराउंड who just keep pleasing you but are not actually adding any value. ओके, यू मेंशन सम ग्रेट इनिशिएटिव्स फॉर ए मॉडर्न वर्कप्लेस। आपने उसमें मुझे बताया कि हडसन भी पैटर्निटी लीव्स देता है, राइट? व्हाट आर द अदर इनिशिएटिव्स दैट हडसन हैज टेकन फॉर एम्प्लॉइज? देखिए अगर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बात करूँ तो हम मैटरनिटी के साथ पैटर्निटी और मैटरनिटी विद अ क्लियर माइंड के लोग जो हैं उसके बारे में से अनसेफ फील ना करें, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो मैटरनिटी पे जाते हुए ये फील करते हैं पता नहीं हम वापस आएंगे तो हमें नौकरी होगी कि नहीं हो। और ये मैंने लोकल में ही देखा है कि ये माइंडसेट होता है लोगों का, तो वो सेफ्टी होना ज़रूरी है। दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ आवर्स, कि आप वो फ्लेक्सिबिलिटी दें लोगों को, ओके। एंड रिमोटली जहाँ पर नीड है और उनको कुछ प्रायोरिटाइज करना है, किसी क्लोज लव्ड वन की हेल्थ है, वेलबींग है, कोई टास्क है, तो उस पे उनके पास ये स्पेस हो कि वो सेफली आकर मुझसे बात कर सकें, अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकें। एंड इट्स नॉट बाय अ पॉलिसी बट शेयर, एंड यू कैन गेट योर वर्क फ्रॉम होम एंड रिमोट वर्किंग के अरेंजमेंट्स। आई थिंक दैट रियली इज समथिंग दैट वी प्रैक्टिस इन दैट। अभी आपने लोकल फर्म मेंशन किया, तो इंटरनेशनल लाइक एमएनसीज जो होती हैं और जो लोकल फर्म्स हैं, स्पेशली फार्मा में अगर हम बात करें, हाउ इज इट डिफरेंट? व्हाट डिफरेंस यू हैव सीन व्हाइल वर्किंग एट हडसन? देखिए फार्मा इंडस्ट्री के अंदर अगर मैं इंटरनेशनल में जाऊँ, मोर ऑर्गेनाइज्ड, मोर स्ट्रक्चर्ड, मोर कंप्लायंस ओरिएंटेड, मोर मेथड ओरिएंटेड, कहीं-कहीं ब्यूरोक्रेसी भी आ जाती है। तो ये एक मल्टीनेशनल का होता है। बहुत सारी जगहों पर जब आप स्केल की बात करने लगते हैं, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो हर मार्केट का 100% कस्टमाइज़ेशन भी कर सकें। ठीक है। तो ये उनकी लिमिटेशन बन जाती हैं। लोकल के अंदर ऑन द अदर हैंड स्पीड एंड एजिलिटी काफ़ी होती है कि आपके पास डिसीजन मेकिंग लेयर्स जो हैं वो बहुत कम होती हैं। यू डोंट हैव टू गो आउट पूरी दुनिया के अंदर परमिशंस लेने के लिए। सो येस दैट गिव्स यू स्पीड एंड एजिलिटी। स्ट्रक्चर थोड़ा कम होता है, तो उस स्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए और स्ट्रक्चर्स डेवलप करने के लिए फिर लोगों की ज़रूरत भी होती है। सो आई थिंक अगर इन दोनों के ब्लेंड के साथ चला जाए कि जो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ मल्टीनेशनल्स चलती हैं एंड स्पीड एंड एजिलिटी लोकल कंपनीज की हम लेकर चलें, तो आई थिंक इट वुड बी एन आइडियल सिचुएशन। सो आई थिंक ये सबसे बड़ा फ़र्क मैंने इन दोनों के अंदर नोटिस किया इन Okay. वे ऑफ वर्किंग। ओके, इट वाज वंडरफुल हैविंग यू, आई हैव लर्नड अ लॉट और मुझे बहुत मजा आया। मुझे लगता है इसकी क्लिप्स भी बहुत मजेदार होने वाली हैं। यू विल सी ऑन सोशल मीडिया, बट बिफोर लीविंग, व्हाट इज द लास्ट पीस ऑफ एडवाइस दैट यू वांट टू शेयर विद द यंग प्रोफेशनल्स हु आर वाचिंग यू? आई थिंक यंग प्रोफेशनल्स के लिए कि एक तो बिलीव इन योरसेल्फ, थोड़ा सा टाइम निकालें, बी करेजियस, एंड सबसे पहला करेज शो करें अपनी डेप्थ इंक्रीज करने के लिए। जिस भी चीज़ को टेकअप करें, so try to research about it quite a bit. Develop your research mentality, just not copy and paste. So I think that is going to take you uh, far. So daring हो थोड़ा, dare to do, dare to think big, and inshallah you'll do much wonders. That we have a very talented young population. It's just that हम स्टेयर अच्छा करें तो हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी है उनकी। एंड मुझे भी बहुत मज़ा आया आपके साथ मैम बात करके। इट वाज़ लवली।
Thank Thank you. you very much.